JavaScript. So first of all, we need to understand what is JavaScript. JavaScript, you can say that the one of the main building block to make the web page interactive. Okay, make the web page interactive. JavaScript is one of the main building block in it. Now, what JavaScript do? JavaScript is the programming language of HTML and the web. JavaScript is a programming language for HTML and web. We need to understand this statement. And what programs do? Program enhance the capability of the environment by supporting with the facts, by supporting with the data information. But where we calculate where we get those informations by processing it, by collecting the facts and data and the process it on our functionality what we has defined to solve that problem statement. So the major function here is to to learn, to understand this what Java is really doing, what JavaScript is really doing. JavaScript will enhance the capability of the web page. That is our main concern, and we will learn about it. And how it will enhance? See, we always say validation takes place at the client end. Validation takes place at the client end. So what are the programming languages which helps in that validation process? Sorry, what are the processes which are helping in the validation process? That process is JavaScript. That process is JavaScript, which is helping in the validation process. Second part is easy to learn. No doubt, it is very easy to learn because there is very basic skill set you need to understand the JavaScript. You just need to go through some, C language and all. C language and all, and then you can switch to the HTML, then CSS, then now the JavaScript is very easy to to enhance because where all those structures has been taken care in such a manner from which easy to enhance. Programmer can easily enhance the dynamics of the web page. Okay. Now, tutorial will teach what is JavaScript. JavaScript, one of the 3 languages web developers must learn. The first 3 languages the web developer must learn, and first is HTML, which define the content of the page. What do the JavaScript define? JavaScript web developers must learn. Web developer must learn this HTML to define the content of the page. And why we need to learn the CSS? We need to learn the CSS for defining the layout of the page. Okay, for defining the layout of the page. And why we need to understand this JavaScript? We need to understand JavaScript to program the behavior of the page. Now, what is behavior? Behavior is something, first of all, behavior is something very personalized. आपका behavior, मेरा behavior, किसी और का behavior अलग हो सकता है, ठीक है? अब ये बताइए कैसे हो सकता है अलग? क्योंकि हमारा सबका परवरिश अलग है, हमारा सबका environment अलग है, हमारे सबको जो infuse किया गया है कल्चरल और हमारा जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो अलग है. तो सेम जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है कि जिस भी तरीके का हम वेब पेज बनाना चाहते हैं तो वो वेब पेज बनाने में हमारी मदद करता है और वो वेब पेज हमें हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूरा कर रहा होता है. जिस भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके हम वेबसाइट अपना क्रिएट करते हैं. तो सिंपल है.
मान लीजिए हम एक कॉलेज की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें एक ग्रीवांस का पेज डालते हैं, तो ग्रीवांस के पेज डालने से नहीं ना होगा। अगर आपको ऑनलाइन ग्रीवांस लिखना है तो ये भी तो आपको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा ना, तो वो भी तो प्रॉपर्टी आपको देना होगा ना कि कैसे आप अडेप्ट करेंगे कि आप अपने ग्रीवेंसेस को वहां लिख सके। तो ये जो डायनेमिक वेब पेज बनाता है, ये जो डायनेमिक वेब पेज बनाता है, ये ये बहुत कुछ हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उस डायनेमिक वेब पेज को बनाने में कुछ हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट। नाउ जावास्क्रिप्ट को मेजर पार्ट ये समझने वाली बात है कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब पेज में ही नहीं यूज होता है। जावास्क्रिप्ट में जो है वो सिर्फ वेब पेज में नहीं यूज होता है। जावास्क्रिप्ट जो है आपके डेस्कटॉप के प्रोग्राम में, सर्वर के प्रोग्राम में, ठीक है, डेस्कटॉप के प्रोग्राम में, सर्वर्स के प्रोग्राम में, सब जगह यूज होता है। तो जावास्क्रिप्ट का जो एरेना है बहुत बड़ा है। और आजकल जो हमारे प्रोग्रामिंग्स हैं, जैसे फ्रेमवर्क है Node.js, ये सम कुछ डेटाबेसेस हैं, MongoDB, CouchDB, ये भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का इसका यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट आसानी से लर्न हो जाता है, आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, इस वजह से ये ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने फिर बताने की कोशिश किया है कि जावास्क्रिप्ट और जावा अपने आप में बिल्कुल अलग लैंग्वेजेस। कॉन्सेप्ट और डिजाइन के रिस्पेक्ट में जावास्क्रिप्ट और जावा ये बिल्कुल अलग लैंग्वेजेस हैं कॉन्सेप्ट और डिजाइन के उसमें, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि जावास्क्रिप्ट पढ़ने से बहुत कुछ भी हेल्प जावा मिलेगी, नहीं। जावा का फॉर्मुलेशन, जावा का डिजाइनिंग, जावा का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। सबसे पहली बात समझने वाला क्या है कि जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन इच इन 1995। और ईसीएमए को अगर हम समझेंगे तो ईसीएमए एक स्टैंडर्ड है जो 1997 में क्रिएट किया गया था। 1997 में क्रिएट किया गया था और इसका ऑफिशियल नाम था ईसीएमएस 262, ठीक है। ईसीएमए स्क्रिप्ट जो है हमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज हैं, ईसीएमए स्क्रिप्ट इसका ऑफिशियल नाम है और इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के ईसीएमए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले 1995 में इम्प्लीमेंट हुआ और उसको स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे मार्केट फोर्सेस हैं, वो अपनी इम्प्लीमेंटेशंस को वाइड रेंज में एक्सेप्टेबल बनाना चाहते हैं। तो वो क्या होता है, फिर एक कॉमन टेबल पे बैठते हैं और फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करते हैं, वही स्टैंडर्डाइजेशन फिर फॉलो करते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट को फॉलो करने के लिए एक ईसीएमए स्टैंडर्ड्स हैं। और ईसीएमए स्टैंडर्ड्स जो है ना वो ईयर वाइज, जैसे 2015 से ईयर वाइज चेंजेस आते हैं, तो उसमें क्या क्या एडेड होते हैं, क्या क्या है उसमें, ये बस समझने वाला है। ईसीएमए सबसे पहले लॉन्च हुआ था स्कीमा स्क्रिप्ट 1997 में, ठीक है। फिर ईसीएमए स्क्रिप्ट लॉन्च हुआ था 1998 में, फिर ईसीएमए स्क्रिप्ट 3 लॉन्च हुआ था 1999 में, फिर ईसीएमए 4 लॉन्च हुआ, ठीक है, जो लॉन्च हुआ नहीं कभी। फिर ईसीएमए 5 आया 2009 में। फिर ऐसे कर करके 2015 से हमने ये कहा कि हम अब ईयर वाइज ईसीएमए स्क्रिप्ट लॉन्च करेंगे, क्योंकि 2015 में बहुत सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी थी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की। और ये जो मोंगो डीबी है ये बेसिकली यूज होता है हडूप में, ठीक है, हडूप में, जिसमें मैप और रिड्यूस फंक्शन भी होता है। और हमारे ये जो मैप और रिड्यूस फंक्शन है ये यूज किया जाता था बिग डेटा में, आपने सुना होगा बिग डेटा। तो बिग डेटा के एनालिसिस में आपको जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता था। तो ये समझने वाला था कि जावास्क्रिप्ट की जो बिग डेटा में हेल्प करता है, जावास्क्रिप्ट हमारे बिजनेस एनालिसिस में, बिजनेस एनालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है, वो हमें एनालिटिकल बनाता है। और जावास्क्रिप्ट और पाइथन
ये जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारा यूज होता है इनका आपस में आपके एनालिसिस में, ठीक है। ये बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक। तो इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। आप एक बार अगर जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को सीख जाते हैं तो आपका कैरियर ओरिएंटेशन ये बना सकता है, अपने आप में कैरियर है। और देखिए समय के साथ इसमें बहुत सारी चीजें ऐड भी हो रही हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, सेट फंक्शंस, तो ये समझना है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ वर्जन्स रख रखे हैं, जैसे इस इन्होंने लिखा है ये वर्जन्स के बड़े अलग अलग हैं। जैसे जब व्हाट इज CMS स्क्रिप्ट 5 आल्सो नोन एज ES5 2000। अब उन्होंने बताया कि भाई न्यू फीचर्स, इतने न्यू फीचर्स ऐड हुए थे एरे में, एरे ईच मैप फिल्टर रिड्यूस रिड्यूस राइट एवरी टाइम इंडेक्स ऑफ लास्ट, ये सब किस में यूज हुए थे? ECMA 5 में। तो इन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टी के चेंजेस किया था, ये हम लोग और डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे। और फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे 6 में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, लेट कांस्टेंट फाइंड इंडेक्स, तो ये हम लोग चेक करेंगे कैसे कैसे चीजें ये हमने किया था। फिर जेसन क्या है? जेसन बहुत सुना होगा आपने। जेसन इज अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अ डेटा, ठीक है। जेसन इज अ सिंपल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द डेटा, ठीक है। अब जेसन क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। व्हाट इज जेसन? जेसन आप पढ़ेंगे, मतलब जरूरत होगी, तो जेसन इज अ ठीक है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये भी XML की तरह, ठीक है, ये भी XML की तरह ही लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, और ये इजी टू अंडरस्टैंड है। और ये पूरा जो सिंटेक्स ड्राइव करता है, ये जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट नोटेशन से ड्राइव करता है। और जेसॉन का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये तरीका है जेसॉन को डिफाइन करने का। और उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें नेम और वैल्यू क्लियर रखते हैं, सेपरेट बाय कॉमा करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में यूज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हैरे यूज करते हैं। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि ये नया तरीका है ऑब्जेक्ट को हैरे फॉर्मेट में डिफाइन करने का। जब जब स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको यूज करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डालते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। उसमें आप फिर डेटा को कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में अपने कर्ली ब्रेसेस में डेटा को शो किया है, ठीक है। तो ये एक और इनके तरीके हैं जेसॉन के कैसे कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमारे कोर्स में नहीं, बट थोड़ा सा हमने आपको एक हिंट दे दिया कि वर्जन्स क्या क्या होते हैं, वर्जन्स में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं, और एक ऐसे ऑनगोइंग लैंग्वेज है, वेब हमेशा डेवलप कर रहा है अपने आप को। तो ये उसका एक एग्जांपल है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जो हमारा टॉपिक था जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, उसको हमने थोड़ा सा टच करने की कोशिश किया कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में क्या है, और जावास्क्रिप्ट का डायमेंशन क्या है, अभी वो डायमेंशन क्या क्या जावास्क्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि आप इंट्रोडक्शन और देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि जो हमने जावास्क्रिप्ट के भी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, कि वो जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या एक्चुअली, ठीक है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या। नाउ one of the many JavaScript HTML method is get element by ID. What is this? Get element by ID. Get element by ID means we always see, it's very important method. JavaScript HTML method is get element by ID. We always need to introduce this part in HTML to get the thing done by the JavaScript and print it according to the definition.
like an inner HTML on our web browser, which is which content is defined by HTML. यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो इधर एक डेमो का आईडी पास किया गया है, फिर इनर एचटीएमएल में उसको इनर एचटीएमएल को कॉल किया गया है एक तरीके से, और फिर आपको हेलो स्क्रिप्ट, ये हेलो स्क्रिप्ट को प्रिंट कराने के लिए कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो एक सिंपल प्रिंटिंग के लिए भी हमको यहाँ पे आप देखो एक पहले आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। आईडी क्रिएट करने के बाद आप इसको भी बटन, यहाँ पे तो उन्होंने एक बटन डिफाइन किया है, ठीक है। बटन डिफाइन करने के बाद ये बताया कि आप क्लिक करते वक्त क्या होगा, एक बटन इन्होंने डिफाइन किया है, यहाँ पे से बटन ओपन किया है, यहाँ पे बटन क्लोज कर दिया है, और क्लिक करने पे उन्होंने ये कहा है कि जब डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बटन तो ठीक है, बटन ये वाला काम कर रहा है, और ये कंटेंट पैराग्राफ वाला ये शो हो रहा है, और हेडर फाइल का कंटेंट यहाँ शो हो रहा है। और ये जो इम्पोर्टेंट है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे, जो इवेंट जनरेट करेंगे, वो यहाँ पे आपके वो यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा कि जैसे ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज कर रहा है, HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। उसके नीचे एक आपने फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो इनिशिएट करेगा एक तरीके से जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को। यहाँ लिखा है वन ऑफ मेनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज इक्वल टू डेमो चेंज द एलिमेंट इन हेलो स्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे हमने क्या करेगा, फिर आप वो आपके इनर HTML में, CSS में जो 3 तरीके बताए गए थे उसमें से एक तरीका जो है, आप इनर HTML में क्या है कि एक ही लाइन में, तो इनर HTML में हेलो स्क्रिप्ट को प्रिंट करें। आप देखो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो इनर HTML में आपके इनर HTML में हेलो जावास्क्रिप्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे इसके पहले जो था जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एलिमेंट, इस इनलाइन में, इस डेटा के इनलाइन में आपका जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एलिमेंट था। यहाँ पे मैंने उस डेमो में, मतलब ये जो आईडी डिफाइन की गई है, ये डेमो है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस कंटेंट, ठीक है। इस कंटेंट में हमने चेंज कैसे किया कि एक बटन डिफाइन किया, ठीक है। उस बटन को डिफाइन करने के बाद उस बटन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है, और स्टेटमेंट के अंदर जो हमने पास करने की कोशिश की, असाइन करने की कोशिश की, वो थी हेलो जावास्क्रिप्ट। और उसको हमने कैसे डिफाइन किया, एक बटन क्या, ये है एक बटन है जिसमें पहले से लिखा हुआ है क्लिक मी, ठीक है। बटन की बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन है क्लिक मी, यहाँ लिख किया जाता है। उसके आपने इसमें क्लिक किया तो वो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट, जो कंटेंट था HTML का, वो चेंज हो सकता था। यहाँ पे ये बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट अपने HTML के कंटेंट का बिहेवियर, अपने बिहेवियर के थ्रू उसको चेंज भी कर सकता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए। फिर जावास्क्रिप्ट HTML के एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकता है। पहला क्या था, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंटेंट चेंज कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पे ये आपको सीखना है कि एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकता है। जी, अब एट्रीब्यूट को कैसे चेंज करेगा ये देखने वाला है, ठीक है। अब देखो, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जावास्क्रिप्ट डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों मंगाते हैं, दोनों पे फॉलो करता है। अभी देखना है कि कैसे ये एट्रीब्यूट्स को चेंज करता है। फिर देखो, जावास्क्रिप्ट HTML के CSS को भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट HTML के CSS को कैसे चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट HTML के एलिमेंट को शो करने के भी काम आता है, ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन में ये पूछ रहा है कि हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ मिलेगा,
ठीक है, कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे जावास्क्रिप्ट को, क्या जावास्क्रिप्ट फ्री है? तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमें जावास्क्रिप्ट को कहीं से भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इंजन जो है, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, वो हमारे वेब ब्राउजर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो हमारे वेब ब्राउजर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम जब कमांड लिखते हैं तो कमांड रन कर जाता है। समझे आप? अब यहाँ पे समझना है पहला कि हम एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज कर रहे हैं। अब ये एक और बात समझिए, पहले हमने डिफाइन किया कंटेंट, फिर हमने डिफाइन किया लेआउट, फिर हमने डिफाइन किया बिहेवियर। अब बिहेवियर के पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई कि वो लेआउट को भी चेंज कर सकता है, वो एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकता है, वो कंटेंट को भी चेंज कर सकता है। अब देखिए कैसे। यहाँ पे हमने HTML स्टार्ट किया, यहाँ पे उसका एक हेडर बनाया, ठीक है, फिर हमने उसकी पैराग्राफ की वेरिएबल को डिफाइन किया, और फिर हमने डिफाइन किया कि हमने ये बताने की यहाँ कोशिश किया कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सोर्स की एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकता है। कैसे? वही कि हमने एक बटन बनाया, पहले ये बटन कमांड को समझिए। बटन बनाने के बाद हमने ऑन क्लिक पे लिखा, अब एक डेमो डिफाइन, एक हमने इमेज को पास किया यहाँ पे, और उसका सोर्स क्या दिया, pic._बलबन.gif। ठीक है, एक GIF है, ये हमारा माई इमेज है, ये बैकएंड में कहीं ना कहीं डिफाइन है। और ऐसे ही आप एक सोर्स डिफाइन किया, pic.बल_ऑफ, ये ऑन है, एक बार बल्ब ऑन होगा, एक बार बल्ब ऑफ होगा। ठीक है, हमने उस इनको बटन किया, यहाँ पे हमने टर्न ऑन किया है। ठीक है, अब फिर इसके और इस इमेज के थ्रू इसको ऑफ किया है। अब देखिए, अब जब क्लिक करते हैं तो बटन, इस बटन से बल्ब ऑन हो जाता है, जब ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ऑन करते हैं ऑन हो जाता है, करते हैं ऑन हो जाता है। एक्चुअली में ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ये क्या कर रहा है कि इमेज के एक इमेज है, उसके एट्रीब्यूट को चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये एक इमेज है बल्ब ऑन और एक इमेज है बल्ब ऑफ। ठीक है, और जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं तो वो सोर्स में जा रहा है जहां पे ऑन बल्ब ऑन इमेज है, बल्ब ऑन GIF है, और जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं तो वो सोर्स पे जा रहा है जहां पे बल्ब ऑफ GIF है। एक्चुअली में कोई इसमें मेथड नहीं है, ये सिर्फ GIF है जो अलग अलग सोर्स पे रखा हुआ है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सोर्स के एट्रीब्यूट को भी ये चेंज कर सकता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या वो कर रहा है, HTML के स्टाइल, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप फॉन्ट साइज 35 px रख रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट ये काम तो खैर CSS भी कर सकता है, लेकिन ये और बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आप उसके एलिमेंट को भी चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे 35 px में 135 भी कर सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग की वजह से document.get element id by demo.style.font_size से आप जब क्लिक करते हैं, रन करिए, क्लिक करिए, तो इसके फॉन्ट को आप चेंज कर देना है। तो ये बता रहा है कि HTML के एलिमेंट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर जा रही है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के हिडन एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। लाइक आपने डेमो लिया, स्टाइल किया, डिस्प्ले नन का डिस्प्ले करने के लिए, फिर हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा, फिर बटन डिफाइन किया। फिर बटन जब आप डिफाइन करते हैं तो इसके पहले यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट छुपा हुआ था ना, आपने जब क्लिक किया तो वो हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। तो हिडन HTML एलिमेंट्स को भी शो कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप, हिडन HTML भी शो कर दे रहे हैं। ठीक है, आप उसके प्रॉपर आप उसके एलिमेंट के फॉन्ट साइज में चेंजेस कर दे रहे हैं, आप एट्रीब्यूट्स में चेंजेस कर दे रहे हैं। ठीक, आप CSS में भी चेंज कर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो CSS का एक एग्जांपल है कि जो आपने ये चेंज किया, आप CSS में भी चेंज कर दे रहे हैं। तो एक्चुअली में आप देखिए, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू
जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप बहुत सारे चेंजेस कर दे रहे हैं जो आपको नहीं पता चल रहा है, जो हमको नहीं पता चलता है यूज करते वक्त। हमको लगता है कैसे हो रहा है, एक्चुअली वो बैकएंड में प्रोग्रामिंग चल रही है। वो प्रोग्रामिंग का जो बहुत बड़ा रोल प्ले वो कौन करता है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का हम काम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज किया जाता है? जावास्क्रिप्ट हमेशा यूज किया जाता है स्क्रिप्ट टैग में। जावास्क्रिप्ट हमेशा कहाँ यूज किया जाता है? स्क्रिप्ट टैग। हमें जहां भी स्क्रिप्ट टैग दिखेगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे है नीचे अंडर ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट के कमांड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट में अब देखो आप यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट को मैंने हेडर फाइल में डिफाइन किया, जावास्क्रिप्ट इन बॉडी में कैसे जावास्क्रिप्ट काम करता है। हमने वही सेम कैसे काम करेगा, सबसे पहले एक आईडी डिफाइन करेंगे। आईडी डिफाइन करने के बाद स्क्रिप्ट टैग लेंगे। स्क्रिप्ट टैग में ये बाय डिफॉल्ट हमको ये मेथड है जो प्रिंट करने के काम आता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ तक तो रखना पड़ेगा, लेकिन ये पासिंग एलिमेंट जो है इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा जो एक्टिवेट करेगा। इसलिए पिछले जब हम एलिमेंट एचटीएमएल के एलिमेंट को चेंज कर रहे, एचटीएमएल के एलिमेंट के एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे थे, तो इसी डेमो के आगे कुछ लिखा हुआ था जिसको हमने क्लिक के हिसाब से चेंज भी किया था। यहाँ पे हमको ये देखना है कि कहाँ पे जावास्क्रिप्ट काम करता है। जावास्क्रिप्ट काम करता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने यहाँ पे इनर एचटीएमएल में माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट को लर्न कराना, उसको प्रिंट कराने के काम के यूज किया। तो वो यहाँ पे उसने हमारे इस इनलाइन में, अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट करते हैं लाइन हटा देते हैं तो क्या होगा, तो नहीं शो करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसमें 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 डेमो में पास तो हो गया, अब उसके आगे क्या करना है इतना हम इसके थ्रू ये बताते हैं, इस कोड के थ्रू ये बताते हैं कि इनर एचटीएमएल में ही आपको जी, अब एचटीएमएल लिखते हैं जी, इनर एचटीएमएल में ही चीजों को शो करना है। आप एचटीएमएल करके देखते हैं तभी नहीं कर रहे हैं। इनर एचटीएमएल मतलब इस लाइन में, तो देखिए कितना स्पेसिफिक है प्रोग्रामिंग। आप इनर एचटीएमएल लिखेंगे तभी वो उस लाइन में शो करेगा। तो ये एस्पेक्ट्स हैं जो प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से जो प्रोग्राम काम करता है उसको समझने के लिए कि प्रोग्राम कुछ भी हो उसको हमको समझना ही है और उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, बढ़िया ही। अब स्क्रिप्ट टैग को समझ में आ गया। ओल्ड जावास्क्रिप्ट में यूज टाइप एट्रीब्यूट्स नॉट टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट, अभी रिक्वायर्ड नहीं। अभी देखो तो जावास्क्रिप्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक चीज होती है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस और इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस और इवेंट्स में क्या होता है जी, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट व्हेन कॉल्ड फॉर। ये जो है ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसको हम कॉल करेंगे। तो डेमो के थ्रू हम आईडी बना के उसको तरीके से कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, कोड जब चलेगा तो ये हमारा माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी, यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। दैट स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन बॉडी। ठीक है, और इन हेड। तो यहाँ पे हमने अभी स्क्रिप्ट को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है।
ठीक है, स्क्रिप्ट को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है। वो ये कह रहे हैं कि जी हेड में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देखते हैं हेड में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। पिछले वाला एग्जांपल बॉडी में था, ठीक है। अब पिछला वाला एग्जांपल हमारा किसमें था, बॉडी में था। यहाँ पे हमको किसमें देखना है, हेड में। आप यहाँ पे देखो, आपने HTML लिया, आपने हेड डिफाइन किया, फिर स्क्रिप्ट कोड लिखा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हेड इसका क्लोज हो जा रहा है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कहाँ पे डिफाइन किया है, हेड में। सेम फंक्शनैलिटी, फिर आपने बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी में लिखा जावास्क्रिप्ट इन हेड, जावास्क्रिप्ट इन हेड, वही डेमो बनाया। एक पैराग्राफ को यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लिखा पैराग्राफ यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है जी ट्राई इट, एक क्लिक फंक्शन बनाया बटन टाइप का, और उसको कह रहा है जी ट्राई इट। कहना क्या है कि इस फंक्शन के थ्रू पैराग्राफ चेंज होगा, तो जब ट्राई करेंगे ना तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि इस हेड में हमने पहले से ही फंक्शन डिफाइन कर दिया है। देखो फंक्शन की डेफिनेशन करने का तरीका देखो, सबसे पहले लिखा फंक्शन, फिर लिखा मेरा फंक्शन, ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया एक तरीके से ये एक कंस्ट्रक्टर है, और एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया। फिर फाइनली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डेमो डॉट HTML को लॉन्च किया, और उसमें डेमो को पास किया जो है यहाँ पे डिफाइन किया था। ये डेमो यहाँ पे ही पास हुआ है, और ये डेमो यहाँ भी पास हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा ए पैराग्राफ, और ए पैराग्राफ को ट्राई इट से पहले क्या था, अब पैराग्राफ, ठीक है। अभी तक ये कोड चल रहा है, लेकिन जब आपने ऑन क्लिक किया तो आपका फंक्शन का ये कोड एक्टिवेट हो गया, और फंक्शन का कोड एक्टिवेट होते ही पैराग्राफ चेंज। ये पूरा मसला है, ये पूरा पैरामीटर, ठीक है। हेड में कैसे काम करता है। दूसरा एग्जांपल है बॉडी में कैसे काम करेगा। बॉडी वाले तो क्या हम समझ चुके हैं। जब हम इस प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स एट द बॉटम ऑफ द बॉडी एलिमेंट इंप्रूव्स द डिस्प्ले स्पीड, ठीक है, बिकॉज स्क्रिप्ट इंटरप्रिटेशन स्लोज डाउन द डिस्प्ले। पिछली बार में देखा एक जगह पहले वर्किंग हुआ, फिर वो हेड पे पास हुआ, तब जाके वर्किंग हुआ। तो हम मैक्सिमम ये चाहते हैं स्क्रिप्ट्स को, है ना, बॉटम ऑफ द बॉडी में रखें, जिससे उसकी स्पीड जो है सुधरी रहे। यहाँ पे वही देखिए कि जो वही सेम फंक्शन है, यहाँ पे हमने HTML लिया, बॉडी लिया, फिर हेड नहीं लिया, ठीक है। हेडिंग डिफाइन किया, फिर वही पैराग्राफ डिफाइन किया, फिर एक पैराग्राफ के बाद एक बटन डिफाइन किया जो ट्राई इट है, फिर स्क्रिप्ट फंक्शन डिफाइन किया, स्क्रिप्ट फंक्शन डिफाइन करने के बाद पैराग्राफ चेंज कराया, वही जब आप क्लिक करें तो पैराग्राफ चेंज हो जाता है। ये है। अब उस तरीके, ये तो ठीक है कि आपने हेड और बॉडी में डिफाइन किया, तो मतलब जहाँ पे हमारा सर्वर पे कोड है उसी कोड के अंदर में आपने डिफाइन कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम एक सर्वर पे जावास्क्रिप्ट का कोड रखते हैं, दूसरे सर्वर पे HTML का कोड रखते हैं, तीसरे सर्वर पे CSS का कोड रखते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो जब हमारा कोड एक्सटर्नल रखा होता है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का कोड रखा रहता है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, समझिए कि क्या करते हैं। स्क्रिप्ट कैन आल्सो यूज एक्सटर्नल फाइल्स, यहाँ पे देखो, और उसका जो एक्सटेंशन एक्सटर्नल का वो है .js। एक्सटर्नल का एक्सटेंशन क्या है, external scripts are practical when same code is used in many different web pages. So JavaScript files have the file extension .js, ठीक है। To use an external script, put the name of script file source, बहुत जरूरी है। जहाँ पे जब मैंने कहा कि हमारा कोड ही अलग रखा है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको सोर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हमने पहले तो स्क्रिप्ट में सबसे पहले स्क्रिप्ट नंबर को डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोर्स में जहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट प्रोग्राम रखा है वो प्रोग्राम को हम कॉल कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम था आपका। आपने यहाँ पे सिंपल डेमो लिया और ऑन क्लिक फंक्शन डिफाइन किया ट्राई, ठीक है, ऑन क्लिक बटन डिफाइन किया ट्राई। अब आपने जो फंक्शन का एक्सटर्नल कोड है myscript.js जो सर्वर पे कहीं हमारे W3 स्कूल के सर्वर पे रखा हुआ है, उसको आपने कॉल कर लिया तो ये ट्राई फंक्शन क्या करेगा, जो चेंज कर देगा, क्या चेंज करेगा जी, आप अगर आपसे चेंज क्या कर देगा, जो हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में कोड में डेफिनेशन दी है वो पैराग्राफ चेंज, ठीक है। जो डेफिनेशन दिया था कि हमको इनलाइन HTML चेंज करना है,
उसमें यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया। आगे देखिए, आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स को हेड और बॉडी में अलग कर देते हैं इन जनरल, ठीक है। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन नॉट कंटेन स्क्रिप्ट टैग, क्यों करेंगे, क्योंकि तो हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो वहां पे सब डेफिनेशन पहले से रखी हुई है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सेपरेट कोड दे, सेपरेट कोड कर देता है ना, सेपरेट कर देता है कोड को, एचटीएमएल को और उसके कोड। तो इट्स मेक्स एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट इजियर टू रीड एंड मेंटेन। और ये क्या करता है, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को इजियर कर देता है रीड और मेंटेन करना। तीसरा तरीका है कैश जावास्क्रिप्ट फाइल कैन स्पीड अप लोड पेज लोड्स। तो पहले से अगर हमारा कैश रहता है जावास्क्रिप्ट का कोड, तो वो लोड स्पीड कर देगा, स्पीडली डिस्प्ले होता है स्क्रीन। ये पूरा था कि कैसे कैसे हम एक्सटर्नल में हम जैसे स्क्रिप्ट कोड रखें, वो भी रेफरेंस के थ्रू, जो यहाँ पे देखो रेफरेंस के थ्रू भी है, कैसे कर सकते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन था एक जावास्क्रिप्ट का कि जावास्क्रिप्ट क्या है, वो बिहेवियर को चेंज करता है, किस किस हिसाब से वो चीज़ों को आगे बढ़ाता है, वो स्क्रिप्ट कोड में काम करता है, वो हेड के अंदर काम, फिर स्क्रिप्ट कोड को कहाँ कहाँ हेड और बॉडी में डिफाइन करते हैं। हेड एंड बॉडी में डिफाइन करने के साथ साथ आप उसको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में भी शो